नाउ गाइस द नेक्स्ट चैप्टर इज बजटरी कंट्रोल। इस चैप्टर में आपको सिर्फ बजट्स बनाने को आ सकता है। दे may ask you variance calculation also, but it will be very simple, not like standard costing, not the lengthy one. It will be very simple, but majorly these people will ask you to prepare various different types of budgets. Now whenever you go for budgets, there is first category of budget which is called as fixed budget and flexible budget. Fixed budget and flexible budget. A fixed and flexible budget बनाने के लिए you just need to understand one thing. If you are preparing budget for one level of activity, it becomes a fixed budget, and if you are preparing budget for more than one level of activity, it becomes flexible budget. If you prepare budget for one level of activity, it becomes fixed budget. If you are preparing budget for more than one level of activity, it becomes a flexible budget. That means they may ask you to prepare budget for 8,000 units, 9,000 units, 10,000 units. Then it is called as flexible budget. If they are asking you to prepare budget only for 15,000 units, then it becomes a fixed budget. Columns बदलेंगे, thought process नहीं. Thought process एकदम simple है. First of all, you split your total cost. First of all, you split your total cost into two parts, variable and fixed. Variable and fixed. Please focus on per unit of variable portion and focus on total of fixed portion. Please focus on variable portion per unit and total के लिए total for fixed overheads. So total cost will be split into two parts, variable and fixed. For variable you are supposed to focus on CPU, for fixed you are supposed to focus on total. That means if there is a change in the cost in the question, if they say cost goes up by 20%, variable के लिए CPU change होगा, fixed के लिए total change होगी. अगर इन्होंने चेंज नहीं दिया तो वेरिएबल के लिए सीपीयू फॉलो होगा, फिक्स के लिए टोटल फॉलो होगी. वेरिएबल के लिए सीपीयू फॉलो होगा और फिक्स के लिए टोटल फॉलो होगी. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरिएबल के लिए सीपीयू फॉलो होगा, फिक्स के लिए टोटल फॉलो होगी. यही फंडा फॉलो करना है आपको सारे कैलकुलेशंस के लिए. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया था? 7,000 आवर्स के लिए इन्होंने डेटा दिया था एंड यू आर सपोज टू प्रिपेयर बजट फॉर 8,000, 9,000 एंड 10,000 आवर्स. सबसे पहले हमने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट को पर आवर में कन्वर्ट कर दिया सिंस द बेस वाज नंबर ऑफ आवर्स. अगर बेस नंबर ऑफ यूनिट्स होता तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेता, and your variable cost will keep on changing because you will be applying that cost per unit or cost per hour in the given level of activity. जो भी आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी दी है उस पर अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. आप आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जस्ट सिंपली अप्लाई सीपीयू और कॉस्ट पर आवर. फिक्स में तो खैर चेंज ही नहीं है, चेंज दिया होता तो 1800 को चेंज करके मैं लिख, और बाकी सेबी वेरिएबल को तो उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया ही है क्या करना है. So please understand one thing, for variable focus on cost per unit or cost per hour in some questions, but cost per unit if your level of activity is given in terms of units, cost per hour if your level of activity is given in terms of number of hours. But then for fixed cost you are supposed to focus only on total. If they don't give you the breakup of semi-variable cost, you can get the breakup in 3 steps. Difference in cost upon difference in quantity. Difference in cost upon difference in quantity will give you a variable cost per unit. That variable cost per unit will be applied on any of the quantity given in the question. You will get total variable cost. Difference in cost upon difference in quantity will give you variable cost per unit, which is to be applied on any one quantity which is given in the question. That will give you total variable cost. और जैसे ही आपको total variable cost मिलती है, you will subtract that total variable cost from the total cost given. तो ये मेरी total cost थी और ये मेरी variable cost जो मैंने माइनस कर दी. अब total में से variable हट गया तो जो बचा वो फिक्स्ड. तो 3 स्टेप में ब्रेकअप हो सकता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, क्योंकि जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन सेपरेट कॉस्ट स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन वेरिएबल पर यूनिट and total fixed. I'm not interested in separate cost structure as semi-variable. Semi-variable is a combination of variable and fixed. For variable, I need CPU.
For fixed, I need total. I'll split that cost. For variable, I'll start focusing on CPU, and for fixed, I'll start focusing on total. Simple. This was about fixed and flexible budget. दूसरा कैटेगरी एक सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज फंक्शनल बजट. फंक्शनल बजट के लिए एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखना, नो मैटर व्हाट इज आस्क्ड, यू हैव टू स्टार्ट विद सेल्स क्वांटिटी. पहले आपको पता होना चाहिए सेल्स कितना है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो प्रोडक्शन कितना होगा. कैसे ढूंढ पाओगे ये चीज? आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा. आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा. क्वांटिटी टू बी सोल्ड, इतना 10,000 बेचने के बाद भी मुझे 10,000 का स्टॉक चाहिए, तो 20,000 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. मतलब क्लोजिंग स्टॉक नीड्स टू बी एडेड. और आपके पास जो पहले से पड़ा है ओपनिंग स्टॉक के तौर पे, उसे प्लीज माइनस कर दीजिए, बिकॉज उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो आपके पास पहले से आ चुका है. सो आई वॉन्ट टू सेल 10,000, I want stock of 5,000 after that, so I should produce 50. I want to sell 10,000, I want stock of 5,000 after that, so I should produce 15. So 2,000 का स्टॉक मेरे पास पहले से है, then I should produce 13. तो ये अगर फॉर्मूला आपके पास है तो आप कहीं से भी सेल्स क्वांटिटी से प्रोडक्शन क्वांटिटी ढूंढ सकते. और जैसे आपको पता चला कितना प्रोड्यूस करना है, सिंपली फाइंड आउट how much is the raw material required to be consumed. तो कंजम्पशन बजट ढूंढ लो, क्योंकि एक बार पता चला मटेरियल कंज्यूम कितना करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट मटेरियल टू बी परचेज्ड. हाउ विल दिस हैपन? एकदम सिंपल है. रॉ मटेरियल purchase budget. Raw material purchase budget. Quantity to be consumed plus I want to consume 20,000 kgs of material. I should buy 20,000. Okay, I want to consume 20,000. I want stock of 8,000 after that. Okay, then buy 28,000. No. I already have stock of 3,000 with me. तो 28 में से 3,000 आपके पास पहले से है, तो 25 परचेज करो. This is your quantity to be purchased. आपको समझा? This is your quantity to be purchased. Quantity to be consumed plus closing stock of raw material minus opening stock of raw material will quantity to be purchased multiplied by price will give you purchase cost. Multiplied by price will give you purchase cost. मतलब बेसिकली रिवर्स में जाना है. मैं परचेज करता हूं रॉ मटेरियल, फिर उसको कंज्यूम करता हूं, फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है, फिर बेचता हूं. आई हैव टू, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग बजट, आई हैव टू थिंक इन द रिवर्स डायरेक्शन. मैं कितना बेचना चाहता हूं? 10,000, तो 10,000 बना. ओके, 10,000 बेचना चाहता हूं, लेकिन आई वांट स्टॉक ऑफ 6,000 आफ्टर दैट, तो 16,000 बना. 1,000 का स्टॉक मेरे पास पहले से है, अरे तो 15,000 बना. क्वांटिटी विल चेंज अकॉर्डिंगली. ओके, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इज 2 kgs पर यूनिट. 15,000 बनाने के लिए 30,000 किलो कंज्यूम करना पड़ेगा. 30,000 बना, पर 30,000 बाय करनी पड़ेगी. उसके बाद मुझे कंजम्पशन के बाद 30,000 के कंजम्पशन के बाद मुझे 15,000 का स्टॉक चाहिए, तो 45,000 यू विल हैव टू परचेज. नो 5,000 का स्टॉक मेरे पास पहले से है, अरे तो 40,000 यू परचेज. बेसिकली इट्स वन एंड द सेम फ्लो यू आर फॉलोइंग. In fact, the moment you get production budget, you can also find out number of hours required. You also find out number of hours required so that you can easily find out labor budget and overhead budget. Labor budget and overhead budget.
ये चार्ट याद रखना फॉर फंक्शनल बजट्स, ये चार्ट याद रखना फॉर फंक्शनल बजट्स. Sales, production, consumption, purchase, sales, production, hours, labor, sales, production, hours, overhead. Trust me, any question you can solve. Any question you can solve. यही पैटर्न फॉलो करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी. हाँ, 3 टाइप के फिनिश गुड्स होंगे तो 3 कॉलम्स आएंगे. 2 टाइप के मटेरियल्स है तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आएंगे. 5 टाइप का मटेरियल, 6 टाइप का फिनिश गुड्स, यहाँ पे 6 कॉलम्स आएंगे फिनिश गुड्स के, यहाँ पे 5 कॉलम्स आएंगे मटेरियल के. बट द पर्टिकुलर पैटर्न विल रिमेन सेम. तो आप अगर पैटर्न आपको पता है तो आप कितने भी मटेरियल का और कितने भी फिनिश गुड्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. You just need to pick up the right information, right data from the question. अब सेल्स क्वांटिटी मिलने के भी 3 तरीके हैं. 99% questions can be solved. Either that quantity will be given to you. Either that quantity will be given to you. बराबर? Either that quantity will be given to you. Or they will give you estimated sales is 10 lakhs at an estimated selling price of 100. अरे तो estimated sales of 10 lakhs will be divided by estimated selling price of 100. क्या मिलेगा आपको? क्वांटिटी सोल्ड. और अगर ये नहीं करना है तो वो क्या कर लेंगे, आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन दे देंगे. estimated sales is 10 lakhs and they will give you complete breakup of cost. मटेरियल इतना, लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने, फिक्स्ड ओवरहेड्स उतने, कंपनी एक्सपेक्ट्स प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. मतलब आपके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर है, आपके पास प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, तो यार कॉस्ट पर यूनिट को आप प्रॉफिट ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी. और अगर आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द सेकंड सिचुएशन. मेरी बात मानो, 99% क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हो सकते और 1% का जो रिस्क फैक्टर है वो हम लोग ने एप्लीकेशन चैप्टर में कवर कर लिया है. विल बी डिस्कसिंग दैट. ये यहां तक समझा है. सो बेसिकली फंक्शनल बजट के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले. फंक्शनल बजट के लिए ये सारे फैक्टर्स जरूरी है. कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर देना, कोई भी. डन. उसके बाद ये 2 कॉपी कर लो. और फिर सेल्स क्वांटिटी. And yes, I'm talking about this question number 3 from your application chapter. Application chapter page number 185, question number 3. इन्होंने आपको 4 टाइप का मटेरियल दिया है. They have also given you 3 types of finished goods. Selling price है, but we do not have sales. They have told us that your quantity will be in the ratio 3:4:2. They have given us labor information. They have also given us variable cost per unit. And they have said they want a profit of 12 lakhs every month and the fixed cost is 1757,200. Now guys, it is very clear that unless and until we recover fixed cost of 7,57,200, we are not going to get the profit. Unless we recover fixed cost of 7,57,200, we are not going to get the profit. That means 12 lakhs profit and 7,57,200 fixed cost will definitely recover, will definitely need contribution to be recovered to the extent of 19,57,200. तो हमने सबसे पहले contribution per unit निकालने की कैलकुलेशन किया. We first calculated contribution per unit. ये प्राइजेस थी. कंजम्पशन के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, लेबर कॉस्ट निकाल ली. मुझे पता चला कंट्रीब्यूशन इज 96 पर यूनिट, 130 पर यूनिट, 62 पर यूनिट. बराबर. अब क्वांटिटी को मैंने x मान लिया और मुझे बोला था कि 3:4:2 रेशो में क्वांटिटी आएगी. तो 3/9x, 4/9x, 2/9x.
विल बी द क्वांटिटी। मैंने इसको इमीडिएटली सेम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसकी मैंने टोटल ले ली क्योंकि मुझे इतना पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन आइडियली शुड बी 1957 टू 100। मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिली x की, और x की वैल्यू मिलने के बाद उसको मैंने स्प्लिट किया वापस 3:4:2 में, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया है। इन दिस क्वेश्चन दे ऑल्सो आस्क्ड अस टू फाइंड आउट सेल्स वैल्यू, तो हमने सेलिंग प्राइस से भी मल्टीप्लाई करके सेल्स बजट निकाल लिया। यू अंडरस्टूड? बट बाकी सारे क्वेश्चंस में याद रखना, सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, या फिर इसका कॉस्ट पर यूनिट देंगे, प्रॉफिट देंगे, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, सेल्स विल बी डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे विल गिव यू सेल्स क्वांटिटी, जैसे अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में हुआ है 4, 5, 6 में क्वांटिटी दे ही दी थी, तो हमको ढूंढनी नहीं पड़ी, सो क्वांटिटी वाज अवेलेबल। करेक्ट? अगर ये लोग क्वार्टर वाइज बजट मांगते तो आपको क्वार्टर वाइज देने पड़ेंगे, 6 मंथली मांगते तो 6 मंथली देने पड़ेंगे, ईयरली मांगते तो ईयरली दे दो। दैट वाज अबाउट योर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स। मैन पावर बजट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे। मैन पावर बजट में वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ आवर्स। मुझे पता चलता है कितने आवर्स काम करना है वर्कर्स को। आइडियली दीज नंबर ऑफ आवर्स वुड हैव गॉट मल्टीप्लाइड बाय द रेट। मुझे अगर सिर्फ लेबर अमाउंट निकालनी है तो दीज आवर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेट्स, नंबर ऑफ रेट्स गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हर महीने 200 घंटा काम होता है, तो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हायर करूं, तो दैट इंफॉर्मेशन वाज आल्सो टू बी गिवन। So when I got this 1,15,120 requirement, I have requirement of 1,15,120. One worker can work only for 200 hours. One worker can work for only for 200 hours. So for 1,15,120, I need 575.6 and 1151.2 वर्कर्स। अब टुंडा वर्कर तो रखोगे नहीं, यू नीड फुल वर्कर, सो 576 होगा और ये 1152 होगा। प्लीज डू नॉट अप्लाई राउंडिंग ऑफ टेक्निक। सर 1151.2 है, 0.5 से कम है। अगर मैं 1151 वर्कर लेता हूं तो 1151 वर्कर्स, do it on Calci, 1151 workers multiplied by 200 hours, मुझसे सिर्फ 2,30,200 आवर्स का काम हो जाएगा और 40 घंटे का आएगा शॉर्टेज। मुझे शॉर्टेज नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे अपर साइड पे राउंड ऑफ करना पड़ा। दे आस्क्ड मी टू कैलकुलेट नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब मैं मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि देखो मैनेजमेंट वालों, तो आपको 576 वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे ग्रेड ए के और 1152 वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे ग्रेड बी के। अब जब मैं 576 और 1152 हायर कर रहा हूं, हर एक को 200 घंटे का पैसा अगर मुझे देना पड़ा, तो काम भले ही इतने आवर्स का हो, कमिटमेंट के हिसाब से मेरे जेब से इतने आवर्स का पैसा जाएगा, एंड दैट विल बी यूज्ड टू गेट द लेबर कॉस्ट बजट। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं मांगे होते, मां कसम इन्हीं आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेता रेट से, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स मांगा है। अब जब मैं 576 वर्कर अपॉइंट करता हूं, 1152 वर्कर्स अपॉइंट करता हूं, तो हर एक को 200 आवर्स का पैसा देना ही होगा। मतलब मुझे किसी भी हालत में 115 200 आवर्स का पैसा देना है और 2,30,400 आवर्स का पैसा देना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। And that is why your labor budget will be recorded like this. This will be your labor budget. तो मैन पावर बजट पूछा, लेबर बजट पूछा, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड इनटू रेट करना। लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने के बाद वाला बजट पूछा तो नंबर ऑफ वर्कर्स का नंबर मल्टीप्लाइड बाय मंथली आवर्स, वीकली आवर्स लेके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा आवर्स के लिए आप पे करो, बट दैट इज फाइन, दैट इज व्हाट द एस्टिमेशन इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। तो ये था बच्चों लोग बजटरी कंट्रोल। बस वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप याद रखना, नथिंग कैन गो रॉन्ग। पूरा का पूरा फंक्शनल बजट इसी में से आएगा। सेल्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन परचेस, सेल्स प्रोडक्शन, आवर्स लेबर, सेल्स प्रोडक्शन, आवर्स ओवरहेड्स, कोई भी सम फंक्शनल बजट का लेके सॉल्व करके देखो, आ जाएगा आंसर। ओके देन, हैव अ नाइस टाइम। जेकेएससी मटेरियल करना और आईसीआई स्टडी मटेरियल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।